वैष्णव मैम। हाँ चालू है। हाँ, चालू करते हैं। Good afternoon, everybody. Now today is our second half section on topic introduction to Power BI and basic steps involved in Power BI. For that purpose, we have a great faculty, Ms. Vaishnavi Bhilare madam. Let me introduce first her. Uh, Ms. Vaishnavi Bhilare is a data analytics trainer from last 3 years and has a very strong industrial experience, but has extensively in large complex data sets within finance as well as banking sector also. He has a very strong technical proficiency in industry leading tools including SQL, Advanced Excel, Looker Studio, etc. So now we have a great opportunity to discuss with this madam. Uh, Now I am request madam, please share your screen and give your valuable things to us for enhance our knowledge. Ma'am, please. Thank Okay, you madam, so please much. share your screen. First of all, am I audible? Yes, yes, yes. Okay, so first of all, I want to know that you all have Power BI installed in your desktop or systems, or else I should show the process of installing that. मॅम कॅन्डिडेट सगळे मोबाईलवर जॉईन झालेले आहे. Okay. So whether I should start with installing process or directly the Power BI. Okay, I will give the overview, like how we should install Power BI. Am I audible correctly? Yes, yes. Please share. Okay. Ma'am, please share your screen. Yes, yes. Okay, my screen is visible. Yes, madam. Okay. Uh, so first of all, we will see the installation process. Okay. So we have to install now Power BI. So we will go in Google Chrome. Okay. So first of all, the installation part. So we'll like Power BI desktop download. Okay. So first link, we'll click the first link and we'll download. Okay, so your download option is there, and further processes like we have to do next, and it will get downloaded. Okay, I will share you the link if you want. Okay, I will share this link so you can directly come to this interface and you can download it. Okay, so first of all, when we say Power BI, what do you mean by BI? Anyone? BI full form? Any do you ever heard
BI, like we have heard about AI, artificial intelligence. So anyone have idea about BI? Okay, so in which language I'm comfortable first of all? Hindi, Marathi, English. Ma'am, any language, no issue. Okay, English and Hindi. Okay, तो हम लोग okay, I will speak in Hindi so that all should understand. Okay, so हम लोग पहले मुझे ये पूछना था कि anyone knows about Power BI full form? So no one answers, so I assume that no one knows. So BI का full form होता है Business Intelligence. Okay, so Power BI, when we say Power BI, it's Power Business Intelligence. So हम लोग Power BI desktop पे आते हैं. So here is my Power BI desktop. I will open it. ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. इधर पावर बीआई ओपन होने के बाद हमें दिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है. तो पावर बीआई इज प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. यू कैन से टूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. तो ये एक इंटरफेस है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इधर से हम लोग, ये मेरे प्रोजेक्ट्स है जिसे हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं. सो पावर बीआई में डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं. सो ये सब मेरे प्रोजेक्ट्स मैंने पहले बनाए थे वो है. सो विल गो टू द ब्लैंक रिपोर्ट. दिस इज नॉट स्टोरी. This is the outside interface. So we'll go to blank report first of all. And this is the original interface of Power BI. Okay. So first of all मैं आपको डैशबोर्ड दिखा दूँ कि हम लोग Power BI में क्या क्या कर सकते हैं. If anyone has any question, unmute and speak. Okay, so ऐसे हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं Power BI में. लाइक ऐसे डेटा को देखना इस तो ये इंटरफेस है पावर बीआई का. ओके, सो दिस इज द डैशबोर्ड. सो अभी ये डैशबोर्ड हम लोग पावर बीआई में बनाते हैं. तो अभी ये सब कैसे बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं. अभी ब्लैंक रिपोर्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी से जो चार्ट्स हमने देखे जो डैशबोर्ड में बनाए थे उसे हम लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन. ओके, सो ये सब चार्ट्स होते हैं. लाइन चार्ट, डोनट चार्ट, पाई चार्ट, सब विजुअलाइजेशन. पावर बीआई बेसिकली इट्स विजुअलाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरफेस पावर बीआई का. Anyone want to say something? Someone mic is not on mute. तो इधर हम लोग देख रहे हैं इंटरफेस पावर बीआई का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डेटा इंपोर्ट करना होता है. okay? जो रॉ डेटा होता है हमारा जो एक्सेल में आता है. तो एनी कंपनी का रॉ डेटा अगर हम लोग देखें तो वो एक्सेल फॉर्मेट में आता है. तो वो हमें पावर बीआई में पहले इधर इंपोर्ट करना पड़ता है. उसके बाद हम लोग फिर इधर वी कैन मेक द विजुअल्स.
So now how we can import the data in Power BI. So there are two methods. We can go to OpenApp and there is get data. So we can go there. Okay, so this is common data source. So Excel workbook है, semantic models है, ये सब data source है. हम लोग यूज इससे import करते हैं data जैसे Excel workbook. हम लोग Excel workbook से click करते हैं. So ये पहला method है. Second method is import data from Excel. So we'll go to get data Excel workbook. So हमारी file manager open हो जाता है. So here I have sample superstore. Okay, मेरे पास sample superstore का data है. Now sample superstore का data मतलब एक grocery store है, उसका data ये है like just as Blinkit and Zepto. उसका data जैसे होता है वैसे ये sample superstore का data है. So I will open it. सो अभी जितना भी डेटा है इधर वो हमें सिलेक्ट करना है. सो सपोज अभी ये ऑर्डर टू पीपल टू एंड रिटर्न टू जो है वो रिपीटेड डेटा है. सो मैं ये सिलेक्ट करूंगी. आई विल जस्ट सिलेक्ट ऑर्डर्स पीपल एंड रिटर्न. जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सपोज मैंने ऑर्डर्स पे क्लिक किया तो मुझे प्रीव्यू दिख रहा है डेटा का कि इसमें क्या क्या है. तो मैं प्रीव्यू दे देती हूँ डेटा का. लाइक ऑर्डर आईडी जो भी हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, कस्टमर आईडी, then वो customer का name, segment, country, city, state, okay, all of this. Okay, so ये सब data का preview है. So then I will click on people. So in people we can see that only person and region. This much only data is there. Okay, and in return, we can see that order ID and return. How many customers have returned their products or not returned their products? Is they satisfied or not satisfied? So these are the informations of the customer. So now इधर option आ रहा है cancel, load and transform data. Load and transform data मैं समझा रही हूँ कि load and transform होता है. Transform data मतलब if you have to make any changes in your data. अगर आपको पता है कि आपका data clean है तो आप क्या करोगे, लोड करोगे. If you know your data is clean, आपको उसमें कुछ भी changes करने की जरूरत नहीं है तो आप लोड पे क्लिक करोगे. अगर आपको लग रहा है कि आपको changes करने की जरूरत है तो आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे. ठीक है, तो शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपके डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है तो ट्रांसफॉर्म, एंड अगर आपका डेटा क्लीन है तो लोड. तो नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन लोड. हमने 3 टेबल्स लिए थे, ऑर्डर, पीपल एंड रिटर्न. तो ये उधर सिंक हो रहा है. नाउ वी विल सी आवर डेटा इन डेटा टैब. ओके, ये डेटा टैब है, ये विजुअलाइजेशंस है, एंड ये है फिल्टर्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्स. इधर ये जो एरो है इधर हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा डेटा हमें इधर विजिबल हो रहा है. पीपल एंड रिटर्न, ये 3 टेबल हमने लिए थे. सो जो भी डेटा हमारे एक्सेल में था वो सबके हेडर्स लाइक हेडलाइन जो हम लोग बोलते हैं वो इधर आ गया है. तो अब ये डेटा इधर लोड हो गया. अभी ये टैब तो मैंने समझा दिया कि डेटा टैब है, ये विजुअलाइजेशन है और ये फिल्टर्स है. फिल्टर्स पे मैं आपको बता. तो ये फर्स्ट इधर लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है रिपोर्ट व्यू. इधर हम लोग हमारा डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं. जैसे अभी मैंने आपको ब्लिंकिट का डैशबोर्ड बताया था फॉर एन एग्जांपल कि डैशबोर्ड कैसा होता है. सो वो जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो इधर क्रिएट करते हैं. सेकंड वन इज टेबल व्यू. नाउ व्हाट इज टेबल व्यू? टेबल व्यू इज द रॉ डेटा, जस्ट लाइक एन एक्सेल. जैसे हम लोग एक्सेल में डेटा देखते हैं वैसे सेम इधर में पूरा डेटा दिखता है. इधर अगर आप नीचे देखोगे तो ये 9994 रोज है. तो इधर हमें पता चलता है कि हमारा डेटा कितना है. सो ये ऑर्डर्स है. पीपल पे अगर क्लिक करोगे तो पीपल का डेटा आएगा. रिटर्न पे क्लिक करोगे तो रिटर्न का डेटा. सो ये टेबल व्यू है. ये मॉडल व्यू है. मॉडल व्यू मतलब जस्ट कनेक्टिंग टू टेबल, हम लोग मॉडल व्यू बोलते हैं.
सो ये मॉडल व्यू और ये है जो क्वेरी लैंग्वेज है, डार्क क्वेरी। अगर हम लोग ऐसे क्वेरीज लिखते हैं, ठीक है, तो ये इतना अभी नहीं करेंगे, हम लोग रिपोर्ट व्यू टेबल व्यू पे कंसंट्रेट करेंगे। सो अगेन आई एम इन रिपोर्ट व्यू। ओके, सो अभी इधर हम लोग देख सकते हैं हमारा डेटा लोड हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये डेटा समझा देती हूँ। इधर सबमिशन साइन जो दिख रहे हैं, अगर हम लोग सबमिशन साइन देखें तो कुछ कुछ डेटा में कुछ कुछ कॉलम में सबमिशन साइन है, सब कॉलम्स में नहीं है। फिर जैसे पोस्टल कोड हो गया, डिस्काउंट हो गया, ऑर्डर डेट हो गया, प्रॉफिट क्वांटिटी, इस सब में देखेंगे तो इसमें ही सिर्फ सबमिशन साइन है, बाकी के इसमें नहीं है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट, पोस्टल कोड, प्रॉफिट क्वांटिटी, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ओके, और बाकी के जो है जैसे कैटेगरी, सिटी, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम, ये सब कैरेक्टर्स, टेक्स्ट वैल्यूज है। तो जहाँ भी सबमिशन साइन होगा वहाँ हम लोग बोलेंगे कि वो मेजर्स है। Okay? तो जहाँ भी सबमिशन साइन है वहाँ हम लोग बोलेंगे कि मेजर्स, हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। सपोज डिस्काउंट, पोस्टल कोड एंड प्रॉफिट में सबमिशन साइन है, तो मैं टेबल व्यू में गई और इधर हम लोग देख सकते हैं पोस्टल कोड था, तो पोस्टल कोड में न्यूमेरिक वैल्यूज है। देन सेल्स, सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यूज है। क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ये सब न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो उधर सबमिशन साइन आ रहा है। फिर बाकी जो है शिप मोड हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, कस्टमर नेम हो गया, सेगमेंट, ये सब टेक्स्ट वैल्यूज है, तो उसमें सबमिशन साइन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग अभी चार्ट बनाएंगे, कि ये सब जो विजुअलाइजेशन है वो हम लोग इधर बनाएंगे। तो एक हमें क्या याद रखना है कि एक टेक्स्ट वैल्यू एंड एक सबमिशन वैल्यू, लाइक एक मेजर, जो भी सबमिशन वाला है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर, जो भी बिना सबमिशन वाला है, जो भी टेक्स्ट वैल्यूज है उनको हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। तो एक मेजर एंड एक डायमेंशन, ऐसे करके एक विजुअल बनता है। तो अभी डेटा तो मैंने आपको बता दिया कि डेटा क्या होता है, फेच किधर से करते हैं। तो नाउ विजुअलाइजेशन क्या है, तो विजुअलाइजेशन मतलब मैंने ओवरव्यू दिया था कि चार्ट्स होते हैं। So visualization से काफी I mean showing data in charts and graphs. क्योंकि ग्राफ्स के फॉर्मेट में हम लोग उसको शो कर सकते हैं to easily understand like trends हो गया, patterns and insights for better decision making. Okay, so better decision making मतलब सपोज एक कंपनी है, तो उसको देखना है कि उनका ओवरऑल ईयर का प्रॉफिट या फिर सेल्स कितना हुआ है। तो हम लोग ये डेटा अगर हम लोग देखें तो इससे हम लोग को नहीं पता चल सकता कि कितना लाइक प्रॉफिट एंड सेल्स हुआ है। तो हम लोग ग्राफ के फॉर्मेट में या फिर चार्ट के फॉर्मेट में देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस या फिर कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो विजुअल्स हमें वो हेल्प करता है बताने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन में जो है वो बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट है। ओके, नाउ आई विल शो कि बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट कैसे बनाते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट के यूज होते हैं फॉर द कंपैरिजन। ओके, अगर हमें कंपेयर करना है सपोज जैन टू दिसंबर, सो जैन टू दिसंबर हर एक मंथ में कितना प्रॉफिट एंड कितना सेल्स जनरेट किया वो हमें देखना है। ओके, सो हम लोग ये यूज करते हैं बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन क्लिक ऑन दिस। अभी ये इधर कैसे, ये वाला जो चार्ट है वो इधर कैसे आएगा, जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन इट। उस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली इधर विजिबल होगा। अभी हमने इस पे डेटा नहीं डाला है इसलिए वो ऐसे ग्रे फॉर्मेट में दिख रहा है। ओके, तो इसे अगर आप कर्सर इधर रखोगे नॉर्मली तो इधर दिख रहा है स्टैक बार चार्ट। ओके, स्टैक बार चार्ट। सो अभी इसमें हम लोगों को डेटा फिल करना है। तो टू फिल द डेटा व्हाट टू डू, एक रूल मैंने क्या बताया था, एक डायमेंशन एंड एक मेजर। ओके, सो सपोज मैंने लिया कैटेगरी, कैटेगरी वाइज। ओके, अगर मैं सिर्फ कैटेगरी ले रही हूँ तो चार्ट नहीं बन रहा है क्योंकि मैंने एक ही सिर्फ
टेक्स्ट वैल्यू लिया है, मैंने अभी तक कोई न्यूमरिक वैल्यूज नहीं लिया है, तो सपोज मैंने कैटेगरी लिया और कैटेगरी वाइज कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे वो देखना है। तो अगर आप कैटेगरी में देखोगे तो तीन वैल्यूज, टेक्नोलॉजी है, ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर। तो अभी ये देख के हमें समझ रहा है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है टेक्नोलॉजी का, और सबसे कम जो हुआ है वो फर्नीचर। तो दिस इज दी स्पेशलिटी ऑफ ग्राफ्स कि हम लोग डेटा देख के नहीं समझ सकते कि किसका कम हुआ है, बट ग्राफ देख के हम लोग समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, फर्नीचर का सबसे कम हुआ है। अभी तक ये चार्ट जो हमने बनाया, अभी तक किसको डाउट है इसमें, कुछ पूछना है, क्वेश्चन? तो हमने, सॉरी, anyone want to ask something? हम कंटिन्यू, ओके। तो ये एक हमारा चार्ट हो गया, सेम अभी हमें ऐड करना है और एक पेज। तो इधर जाके हम लोग ये प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो और एक पेज ऐड हो जाएगा। तो अभी ये हमने बार चार्ट बनाया है। तो सपोज अभी मैं सेकेंड वाला चार्ट ले रही हूँ, स्टैक कॉलम चार्ट। अभी इसमें हम लोग एक डायमेंशन दैट इज सब कैटेगरी और एक न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज सेल्स। तो सब कैटेगरी वाइज सेल्स देखना है कि सब कैटेगरी का सेल्स कितना हुआ है। ओके, सो फर्स्ट सबसे ज्यादा सेल अगर आप देखोगे तो फोन्स का हुआ है। कर्सर अगर आप रखोगे तो उधर दिख रहा है कि फोन्स का सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है, और लास्ट में जो है फास्टनेस उसका सबसे कम हुआ है। 3000 का सेल्स हुआ है, और फोन्स का जो सेल्स है वो 3,30,000 सेल हुआ है। तो इन ग्राफिकल फॉर्मेट हमें अच्छे से पता चल रहा है कि किसका सेल्स ज्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है। ओके, अब आई इसकी फॉर्मेटिंग का पार्ट। तो अभी इस पर फॉर्मेटिंग लाइक कलर वगैरह हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने इधर क्लिक किया चार्ट पे, एक फॉर्मेट योर विजुअल्स। अगर आप इधर क्लिक करोगे तो वो नहीं आएगा साइड पे। मैंने चार्ट के अंदर क्लिक किया एंड फॉर्मेट योर विजुअल। तो अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे विजुअल जनरल्स। तो विजुअल में एक्स एक्सिस एंड वाई। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे जाती हूँ और अगर मैंने ये साइज इंक्रीज किया तो आप देखोगे ये टेक्नोलॉजी सप्लाई एंड फर्नीचर का साइज इंक्रीज हो। तो को बोल्ड करना है, ओके, मुझे ये चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, और कलर अगर चेंज करना है आपको, अगर मैंने ब्लू भी रखा तो वो ब्लू हो रहा है। तो ये सब फॉर्मेटिंग का पार्ट है। देन टाइटल, शो टाइटल ओनली। सो ये सम ऑफ प्रॉफिट बाय कैटेगरी है जो हमारा टाइटल है। तो हम लोग आते हैं एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे भी सेम वैल्यूज में जाके साइज इंक्रीज करना है तो हम लोग कर सकते हैं। सो ये 0K 50K 100K इसका साइज इंक्रीज होगा। कैन होल्ड, तो जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो इधर से कर सकते हैं। एक रेड लाइंस, जो पीछे एक रेड लाइंस है वो अगर नहीं चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं। ये बार, ये वाले जो बार है उसका कलर अगर सपोज हम लोग को चेंज करना है, सपोज मैंने कलर चेंज हो लाइट ब्लू, यही कलर
different also formatting ऐसे हम लोग बहुत सारे इधर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सपोज अगर मैंने डेटा लेबल्स इधर ऑन किया तो डेटा लेबल्स ऑन करने के बाद क्या हो रहा है हमें इधर कर्सर रखने की जरूरत नहीं है इधर आगे हमें दिख रहा है कि कितना हुआ है लाइक फर्नीचर का हम लोग बोल सकते हैं 18 के हुआ है टेक्नोलॉजी का 145 के हुआ है ओके अगर हम लोग डेटा लेबल्स बंद कर रहे हैं डेटा लेबल्स बंद कर रहे हैं तो डेटा अगर हम लोग ऑन कर रहे हैं तो ये कितना नहीं कितना लाइक टेक्नोलॉजी का कितना हुआ है सप्लाई और फर्नीचर का कितना प्रॉफिट हुआ है सो व्हाट विल डू विल ऑन डेटा लेबल्स सो दैट वी कैन सी विदाउट पॉइंटिंग द कर्सर कितना प्रॉफिट ओके अभी ये हो गया विजुअल का विजुअल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं ग्रिड लाइन बार्स रिबन्स हो गए रिबन्स अगर आप ऑन कर रहे हो तो उसको ऐसे लुक आता है कि अगर सपोज ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करना है तो मैंने तो ऐसे उसको लुक आना है बॉर्डर अगर आपको करना है तो ये हल्का सा ब्लैक लाइन इधर आ गया है बॉर्डर्स का प्लॉट एरिया बैकग्राउंड मतलब ये जो चार्ट है उसके बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ इमेज इंपोर्ट करनी है तो ब्राउज से जाके आप लोग अगर सबकी लाइब्रेरी में कुछ होगा तो इधर आप ओपन कर सकते हो अगर इधर आपने ओपन किया तो बैकग्राउंड में पिक्चर डिस्प्ले हो जाए ओके देन जनरल जनरल में ये जो टाइटल है प्रॉफिट बाय कैटेगरी अगर उसको लोग बंद कर रहे हैं तो वो दिखेगा नहीं बट टाइटल इज इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स में अगर जाके मैं चेंज करूँ तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा तो सपोज हल्का ग्रे करके ये विजुअल बॉर्डर मतलब ये चार्ट को ओवरऑल एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा ओके विजुअल बॉर्डर मैंने ऑन किया कलर कलर उसका ब्लैक ही है तो सपोज मैंने उसका विद इंक्रीज किया तो एक फॉर्मेटिंग या फिर फॉर्मेटिंग आ रही है बॉर्डर्स को कि अगर आपको शैडो ऑन करना है मैं चार्ट का साइज डिक्रीज करती हूँ तो आपको शैडो सपोज ये चार्ट है फॉर्मेटिंग विजुअल जनरल इफेक्ट्स एंड शैडो इस तो शैडो वाला पार्ट इधर डिस्प्ले हो रहा है डेटा फॉर्मेट हेडर आइकन्स कलरिंग वगैरह करना आइकन्स यूज करना ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है कुछ नहीं कर सकते टूल टिप्स बैकग्राउंड अगर सपोज टेक्स्ट मैंने इसलिए इसका फॉर्मेटिंग का पार्ट ओके सो ये बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट ये फर्स्ट लाइन अगर आप विजुअलाइजेशन की देखोगे तो पूरा बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट ही है सपोज अभी मैं थर्ड वाला जो है क्लस्टर्ड बार चार्ट लिखती हूँ हमने फर्स्ट किया था बार चार्ट इधर मैं रीनेम करती हूँ क्लस्टर्ड बार चार्ट सो ये एक बार चार्ट है और ये क्लस्टर्ड बार चार्ट तो इसमें डिफरेंस लेगा सपोज मैं सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट ले लूँ ये चार्ट पे क्लिक करके चार्ट के अंदर क्लिक करके ही हमें इधर से लेकर सब कैटेगरी सेल्स
तो सपोज अभी मैंने क्या किया, कैटेगरी एंड दो मेजर्स के बीच में मैंने कंपैरिजन किया है, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। लाइक प्रॉफिट कितना हुआ है उसके बराबर मैंने क्वांटिटी कितना किया है। सो ये जो लाइट ब्लू वाला बार है इंडिकेट कर रहा है कि सम ऑफ प्रॉफिट कितना है, एंड जो डार्क ब्लू वाला जो नियॉन कलर का बार है वो इंडिकेट कर रहा है कि सम ऑफ क्वांटिटी कितना है। सो ये कंपैरिजन हो गया। तो मैंने एक टाइम पे एक कैटेगरी, एक डायमेंशन एंड दो मेजर्स लिए, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। सो इसको भी हम लोग डेटा लेबल्स वगैरह ऑन करके समझ लेंगे कि 7K क्वांटिटी है। अभी ये जो डॉट्स है, लाइट ब्लू वाला सम ऑफ प्रॉफिट एंड डार्क ब्लू वाला सम ऑफ क्वांटिटी, इसको हम लोग बोलते हैं लेजेंड्स। लेजेंड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन सा बार क्या दिखा रहा है। सो फर्स्ट इज लाइट ब्लू जो सम ऑफ प्रॉफिट एंड सेकंड इज डार्क ब्लू सम ऑफ क्वांटिटी। तो ये जो फर्स्ट लाइन है वो पूरी कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट यही इंडिकेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज स्टैक बार चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट। ये जो आपको बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट ये दो आउटपुट देगा। इसको हम लोग बोलते हैं, जो वर्टिकल अलाइन है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम चार्ट, जो हॉरिजॉन्टल अलाइन है उसको बार चार्ट। सो नेक्स्ट इज लाइन चार्ट। अभी लाइन चार्ट किस लिए यूज होता है, टू शो द ट्रेंड। ओके, अभी हम लोग सपोज मैचेस जो आईपीएल वगैरह या फिर इंडियन मैचेस वगैरह भी देखते हैं, तो उसमें दो टीम्स का अगर ये शो करना है, स्कोर शो करना है, तो लाइन चार्ट यूज होता है। Okay, अगर आपने मैचेस वगैरह कभी देखे होंगे तो उसमें लाइन चार्ट सबसे ज्यादा यूज होता है। तो लाइन चार्ट को हम लोग कैसे याद रखते हैं, शो दी ट्रेंड ऑफ दी प्रोडक्ट या फिर ट्रेंड ऑफ दी जो भी कैटेगरी, सब कैटेगरी जो भी आपको लेना है। सपोज मैं इधर रीजन ले रही हूँ, रीजन वाइज कितना प्रॉफिट हुआ है। इस रीजन हमारे पास कितने हैं, सेंट्रल, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इंक्रीज करते ओके। सो इधर चार रीजन है हमारे पास, सेंट्रल, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो मैंने क्या किया, इसमें रीजन वाइज कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे वो देखना है। तो रीजन वाइज सबसे ऊपर जब सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिसका हुआ है वो है वेस्ट। By seeing the visual, we can see that sum of profit सबका सबसे ज्यादा होगा वेस्ट का, फॉरवर्डिंग टू ईस्ट, साउथ एंड सेंट्रल। ओके, अभी इसके भी डेटा लेबल्स हम लोग ऑन करके देखेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है। सेम अभी इसमें हम लोग शेड एरिया ऑन है, शेड एरिया, एरिया चार्ट बता देते हैं, सीरीज लेबल, एरिया बैकग्राउंड, सेम फॉर्मेटिंग आप इधर भी कर सकते हैं। जनरल इफेक्ट्स में बैकग्राउंड कलर देना है, ओके, या फिर विजुअल बॉर्डर, शैडो करना है। तो ये सब आप जब एक्सप्लोर करोगे ये फॉर्मेटिंग पार्ट, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एडवांस ऑप्शंस भी है, पोजीशन, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कितनी रखनी है। सपोज मैं अगर हॉरिजॉन्टली तो ये चार्ट बीच में आ रहा है, तो हम लोग ऐसे भी उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। जनरल, अगर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह भी ऐड करना है तो यू कैन एंटर द डिस्क्रिप्शन। शेड एरिया, शेड एरिया नहीं, सॉरी, लाइन, ये लाइन का कलर नहीं चाहिए, ब्लू, ब्लैक चाहिए, आप वैसे चेंजेस इसको कर सकते हैं। तो ये लाइन चार्ट हो गया। अगेन आगे है हमारा एरिया चार्ट। फिर लाइन चार्ट एंड एरिया चार्ट में डिफरेंस क्या है,
कैटेगरी वाइज तो अभी सब कैटेगरी वाइज अगर हम लोग डिस्काउंट देख रहे हैं तो ऐसा एरिया चार्ट हो रहा है, मतलब बन रहा है। तो अभी ये वाला हमारा लाइन चार्ट है और ये हमारा एरिया चार्ट है। सो अभी इसमें डिफरेंस क्या है, लाइन चार्ट में क्या हो रहा है, सिर्फ एक लाइन हमें डिस्प्ले कर रहे हैं और एरिया चार्ट में अगर आप देखोगे तो लाइन है, ये जो थिक ब्लू वाला लाइन दिख रहा है वो लाइन चार्ट है, बट उसके साथ ये एरिया भी कवर हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिया चार्ट। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइन चार्ट और एरिया चार्ट में इतना है कि वो एरिया कवर करता है। Okay, तो इधर क्लिक करूंगी, रेड लाइंस मुझे नीचे ही पेड एरिया एक्सेस में, एक्सेस में भी वैल्यू सही देती हूँ। So this is line and area chart. So 100% stack area chart है ये, सेम जैसे स्टैक बार चार्ट एंड स्टैक कॉलम चार्ट था, जैसे सेम स्टैक एरिया चार्ट है। Okay, और ये भी एक पार्टी है कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट। और इम्पोर्टेंट, मैं इम्पोर्टेंट पहले बता, तो नेक्स्ट इज पाई चार्ट। ओके, सो पाई चार्ट अभी आपको ओवरव्यू दिख रहा है कि पाई चार्ट क्या होता है, एक राउंड विजुअल है। तो पाई चार्ट हम लोग कैसे बोल सकते हैं, टू लाइक टू शो द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो हम लोग ने स्कूल में देखा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन शो करने के लिए ये चार्ट यूज होता है, टू शो द होल प्रोपोर्शन, लाइक 100% बीच में है और ये साइड में डिस्ट्रीब्यूशन उसका कितना हुआ है, अगर ये हमें देखना है तो पाई चार्ट यूज है। I will see category का legend इधर आ गया, like blue furniture, knowledge technology and W office supply। तो कैटेगरी वाइज अगर मुझे देखना है क्वांटिटी कितना है, एक हमारा चार्ट बन, अगर आप इधर ऑब्जर्व करोगे तो ये लेजेंड्स है, जैसे ये वाले चार्ट्स में थे। ये वाले चार्ट्स में जैसे लेजेंड्स थे, वैसे इसमें भी लेजेंड्स है, टू आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द विजन। तो इधर आप देखोगे तो इधर परसेंटेज में भी आ रहा है, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमेशा परसेंटेज में ही होता है, तो उन्होंने ब्रैकेट में परसेंटेज भी डिस्प्ले किया है कि परसेंटेज वाइज आपका क्वांटिटी कैटेगरी वाइज दे रहे हैं। So we can see the 100%, 100% इधर है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लाइक ऑफिस सप्लाईज। अभी ये विजुअल भी आपको देख के समझ रहा होगा कि ऑफिस सप्लाईज का सबसे ज्यादा क्वांटिटी जा रहा है, सबसे कम जो जा रहा है वो है टेक्नोलॉजी। तो विजुअल्स का यही यूज होता है कि हमें इजीली डेटा को रीड करने आता है। तो सपोज अभी मैं स्लाइसेस जो है, कि अगर आपको स्लाइसेस स्लाइसेस इन द सेंस ये जो स्लाइस है और फिर ये डब्ल्यू एंड ये सो उसके कलर अगर आपको चेंज करना है, अभी अवेलेबल नहीं है, बॉर्डर अगर आपको देनी है, सपोज ब्लैक डिटेल लेबल्स रोटेशन, जैसे आप रोटेट कर सकते हो उसको। देन जनरल में आके सेव विजुअल बॉर्डर, सो ये पाई चार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, डोनट चार्ट।
अभी पाई चार्ट और डोनट चार्ट में डिफरेंस क्या है? पाई चार्ट जो है वो होल एरिया कवर कर रहा है और डोनट चार्ट जो है वो डोनट शेप का है जो बीच का एरिया नहीं कवर करता है। ठीक है, बस इतना ही इसका डिफरेंस। फिर पाई चार्ट और डोनट चार्ट में एक रूल क्या होता है कि हम लोग ज्यादा क्वांटिटी मतलब ज्यादा डेटा इसमें इंपोर्ट नहीं कर सकते। कैटेगरी में आप देखोगे तो 3 ही कैटेगरीज है, तो 3 इसमें दिख रहा है कि कितना। सपोज अगर मैं इधर कैटेगरी छोड़ के ये जो हमारा कस्टमर नेम्स है, अभी कस्टमर तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर मैं कस्टमर नेम का डेटा लेती हूँ तो वो कुछ ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट में कंपलसरी जो डेटा कम है वही हमें इंपोर्ट करना है। मैक्स टू मैक्स आप लोग 8 रो का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इस समय कस्टमर नेम कट कर सपोज सब कैटेगरी, सब कैटेगरी भी ठीक है, बट स्टिल हमें वो रीड करने नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर क्या इंडिकेट कर रहा है और क्या उसका परसेंटेज है। रीजन भी आप ले सकते हो, रीजन वाइज अगर आपको देखना है, वेस्ट रीजन, ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ। तो सेम कैटेगरी होगी। कैटेगरी माय रूल लाइक एक डायमेंशन एंड एक मेजर। पोस्टल कोड ले लो, फिर जो हमारे एरिया का पोस्टल कोड होता है वो। तो ऐसे another important like visual is card visual। अभी कार्ड विजुअल, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक डायमेंशन एंड एक मेजर ले रहे थे। Okay, so एक न्यूमरिक वाला वैल्यू और एक टेक्स्ट वाला वैल्यू हमें यूज करना था तो शो क्रिएट दी चार्ट। अभी कार्ड कार्ड में क्या होगा, हम ओवरऑल वैल्यू शो कर सकते हैं। अभी ये वाला जो मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था, सपोज आपको ओवरऑल रेवेन्यू शो करना है कंपनी का, तो ओवरऑल रेवेन्यू इसका कितना हुआ है साल भर में, 25 का या 26 का भी करंट है, 25 का ओवरऑल रेवेन्यू कितना हुआ है 2025 का। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, सपोज सेल्स शो करना है मुझे इसमें, तो मैंने सेल्स पे क्लिक किया, सो ऐसे एक नंबर लिख के आ रहा है, जैसे कार्ड में एक नंबर लिख के आता है वैसे सेल 2.50 मिलियन उनका सेल्स हुआ है। सम ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स उसका इतना हुआ है। सपोज अभी मैंने और एक कार्ड लिया और इसमें मैंने डाला कि प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो सम ऑफ प्रॉफिट वी कैन सी इतना हुआ है, सम ऑफ सेल्स इतना हुआ है। एक बार वो ओके, सो ये जो ऊपर हम लोग को ये जो है हमारा टाइटल है, जो हमारा डैशबोर्ड का टाइटल होता है, और ये लोगो है। तो एक डैशबोर्ड बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइटल लिखना पड़ेगा। और ये जो कार्ड्स है, ठीक, तो आप देखोगे तो ब्लिंकिट का ये डैशबोर्ड है और टोटल ऑर्डर्स उनके कितने हैं, 736,000 के टोटल ऑर्डर्स है। एवरेज डिलीवरी टाइम ब्लिंकिट का जो है 16 मिनट्स का, एवरेज रेटिंग 4.30 एंड टोटल रेवेन्यू जो है 57 मिलियन। तो ये जो कार्ड्स डिस्प्ले हुए हैं इधर रेटिंग टाइम एंड ऑर्डर शो करने के लिए, वो हम लोग कार्ड से यूज करते हैं। दिस इज ये वन सब ऑफ सेल्स। अभी इसमें जो है आप सिर्फ नंबर्स ही ले सकते हो। कि अगर आप टेक्स्ट डालोगे तो वो नहीं आएगा, कैटेगरी अगर डालोगे तो नहीं आएगा, सिटी वगैरह नहीं है, डिस्काउंट, पोस्टल कोड, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी डालोगे तो वो डिस्प्ले होगा। सो नेक्स्ट इज तो ये ट्री मैप है। सपोज मैं कैटेगरी ले लूं सेल्स,
तो ये क्या करता है, सिर्फ बॉक्सेस में शो करता है कि आपका सेल्स कितना हुआ है। तो छोटा जो बॉक्स है उसका सेल्स सबसे कम हुआ है, एंड बिगर द बॉक्स सेल इज बिगर। तो फोन्स का सबसे ज्यादा, जैसे हम लोगों ने इधर इधर भी देखा था कि फोन्स का सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है, फैशनर्स का सबसे कम हुआ है। तो टी मैप भी वही इंडिकेट कर रहा है कि फोन्स का सबसे ज्यादा हुआ है, फैशनर्स जो है लास्ट में छोटा बॉक्स है उसका कम हुआ। ओके, दिस टेबल। टेबल में भी क्या होगा, नॉर्मल जो हमारे टेबल होता है एक्सेल में भी जो हम लोग टेबल यूज करते हैं, इधर अभी हम लोग लाइक सबसे जो कंटेंट ज्यादा है, सपोज कस्टमर नेम सबसे ज्यादा है, तो फिर कस्टमर नेम के साथ कौन से कस्टमर ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट करके हमें दिया है, तो वो हम लोग इधर देख सकते हैं। ओके, टेबल फॉर्मेट में सिर्फ इतना ही होता है कि वो टेबल में हमें अरेंज करके वैल्यूज देखो। तो लास्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये टोटल डिस्प्ले हो रहा है, विच इज सम ऑफ प्रॉफिट। तो माइनस में भी कुछ कुछ कस्टमर्स है जिन्होंने सेल्स नहीं, सॉरी प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिए, तो वो माइनस में डिस्प्ले हो रहे हैं। यानी लास्ट में टोटल। तो ये हम लोग देखेंगे तो ये टेबल था। नाउ नेक्स्ट वी विल सी मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स में अभी सपोज मैं ले रही हूँ प्रोडक्ट नेम, ओके। तो टेबल में क्या हो रहा था, टेबल में मैं वर्टिकल फॉर्मेट में डेटा दिख रहा है। अभी मैट्रिक्स में क्या होगा, ये जो कस्टमर नेम है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ गया। फिर जितना भी हम लोग टेबल एक्सटेंड करेंगे, लाइक इधर से मैं टेबल एक्सटेंड, तो जितना भी हम लोग एक्सटेंड करेंगे वो नेम्स उतना एक्सटेंड होगा। सो मैट्रिक्स एंड टेबल में डिफरेंस क्या है, टेबल हमें वर्टिकली शो करता है, मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टली हमें डेटा शो करता है। ये सब पाइथन वाले लैंग्वेजेस है नीचे। तो जो मेन विजुअल्स थे हमारे, वो सब यही थे, कार्ड्स, फिर कॉलम, ये चार्ट हो गया, कॉलम एंड बार चार्ट, पाई एंड डोनट, एरिया एंड लाइन चार्ट, ट्री मैप, कार्ड्स। ओके, ये सब हमारे मेन चार्ट थे। अब देखोगे तो इसमें भी वही सब यूज होते हैं। लाइन चार्ट है, देन बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, डोनट चार्ट है। Okay, ये सब यूज करके ये डैशबोर्ड बनाया हुआ है। तो अभी और एक जो पार्ट है हमारा वो है स्लाइसर्स। स्लाइसर्स भी हमें इधर विजुअल्स में ही, सपोज मैं इधर को कर रही हूँ और इधर हमारा स्लाइसर है, इधर मैंने कर्सर रखा है, तो उधर हमें स्लाइसर दिख रहा है, so मैंने वो इंपोर्ट किया। तो अभी स्लाइसर मतलब क्या, हम लोग हमारे 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 कन्वीनियंस से हम लोग डेटा को देख सकते हैं। सपोज अभी मेरा सब कैटेगरी एंड सेल्स है, सेम हम लोग जैसे चार्ट ले रहे हैं बाकी के, वैसे ही हम लोग स्लाइसर्स भी लेंगे। तो सब कैटेगरी मैंने लिया। ओके, तो स्लाइसर मतलब अभी सपोज मैंने चेयर्स पे क्लिक किया, तो सिर्फ चेयर्स का वैल्यू आ रहा है। तो मैंने एक्सेसरीज पे क्लिक किया, तो सिर्फ एक्सेसरीज का बार हमें दिख रहा है। तो मैंने लेबल्स पे क्लिक किया। ओके, अभी मुझे एक ही टाइम पे मल्टीपल इस पे क्लिक करना है, तो मैं कैसे करूँगी, कंट्रोल कंट्रोल जो की है वो मैं प्रेस करके रखूंगी, एक्सेसरीज, अप्लायंस, आर्ट एंड बुक्स एंड शेयर। तो ये हमें देखना था, तो कंट्रोल प्लस ये बॉक्स पे
क्लिक करना है। Filters and slicers affecting this visual, there aren't any filters applied right now. Filters पे यूज किया हम लोग ने, स्लाइसर्स यूज किए, ये भी मैंने कट किया, विजिबल हो रहा है। तो अभी इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। Slicers मैंने दिया, फिर हमने क्या लिया था, कैटेगरी। तो कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया और मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी का देखना है। तो टेक्नोलॉजी देखना है, सप्लाईज का देखना है, फर्नीचर का देखना है। ये तो मैं एक विजुअल पे दिखा रही हूँ। सपोज अभी ये हमारा डैशबोर्ड है, इधर फिल्टर्स यूज किए हैं। फिल्टर्स कैसे यूज किए, सिटी वाइज। सिटी कौन से, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई एंड पुणे। तो सपोज मैंने अभी मुंबई पे क्लिक किया, तो ये पूरा डेटा मुंबई के हिसाब से चेंज हो रहा है। लाइक मुंबई में कितने ऑर्डर्स हैं, एवरेज डिलीवरी टाइम मुंबई में कितना है, तो 50। एवरेज रेटिंग, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है फ्रॉम सिटी ऑफ मुंबई। और मैंने पुणे पे क्लिक किया, सो वैसे डेटा चेंज हो रहा है। सपोज मुझे देखना है पुणे एंड मुंबई, तो ये पुणे एंड मुंबई का डेटा है। तो इसे हम लोग फिल्टर्स एंड स्लाइसर्स बोलते हैं। हम लोग हमारी कन्वीनियंस से डेटा को चेंज करें। तो और एक पार्ट है लास्ट वाला, वो है फिल्टर्स वाला, जो ये हमारा सेक्शन बचा हुआ है। अभी सपोज हमें देखना है कि टॉप 3 कैटेगरीज या फिर बॉटम 3 कैटेगरीज, सब कैटेगरीज कौन से हैं जिसमें हमें सेल सबसे ज्यादा सेल्स दिया है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्लाइसर्स हम लोग ने देखा, स्लाइसर्स से भी हम लोग देख सकते हैं कि टॉप 3 एंड बॉटम 3 वगैरह कैसे हम सिलेक्ट करके। बट फिल्टर्स से भी हम लोग देख सकते हैं कि टॉप 3 कैटेगरीज कौन से। तो टॉप 3 हम लोग ऐसे अगर देखें तो फोन, चेयर्स एंड स्टोरेज है, ये टॉप 3 कैटेगरीज है। तो जो सबसे ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट या सेल्स दे रहे हैं, ये हमें फिल्टर यूज करके देखना है कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबको सब कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे होगा, तो हमें ओपन करना है सब कैटेगरी, फिल्टर टाइप है इधर। ठीक, तो इसमें से हम लोग जाएंगे टॉप एन पे। ठीक, मैंने इधर से टॉप एन क्लिक किया एंड इधर 3 लिखा। ठीक, कितना आपको नंबर चाहिए, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 3, जो भी है वो इधर लिखना है। फिर टॉप या बॉटम दो ऑप्शन है। फिर टॉप पे क्लिक किया मैंने। सेल्स जो हमने लिया है, जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज इधर हम लोग ने लिया है, वो हम लोग एक ड्रैग करके बाय वैल्यू पे डालेंगे। ठीक, मैंने क्या किया है, यार सेल्स जो है वैसे ड्रैग करके इधर डालें, लास्ट में अप्लाई फिल्टर। सो टॉप 3 हमारे जो हम लोग ने देखे थे, फोन, चेयर्स एंड स्टोरेज है। सो टॉप 3 फिल्टर लगा के हमारे सेल्स सब कैटेगरी में क्या है। सपोज बार चार्ट पे इधर हमें देखना है टॉप 2। टॉप 2 मतलब अभी ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी, अभी डेटा कम है, मैंने चार्ट्स छोटे डेटा पे बनाया है, सो विजिबल है कि टेक्नोलॉजी और सप्लाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। बट स्टिल अगर हमें सपोज देखना है तो चार्ट पे क्लिक करूंगी, इधर क्लिक करके ये ओपन होगा। सो कैटेगरी बेसिक फिल्टरिंग नहीं चाहिए हमें, टॉप वाला चाहिए, टॉप 2। बट ये अप्लाई फिल्टर का ये इनेबल नहीं हो रहा है, तो इधर हमें फील्ड डालना होगा, बाय वैल्यू। तो मैंने प्रॉफिट को ड्रैग करके इधर डाला एंड अप्लाई फिल्टर। सो टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाईज। ओके, सो ये होते हैं फिल्टर्स। ओके, अब ये टॉप एन वाले फिल्टर्स हो गए। सपोज कट करके, ये टॉप एन वाले फिल्टर्स है। तो इधर अगर मुझे कट करना है तो इधर क्लियर फिल्टर। अगेन इधर और एक क्या है, बेसिक फिल्टरिंग। बेसिक फिल्टरिंग मतलब सेम जो हम लोग ने स्लाइसर यूज किया था, एक एक सिलेक्ट करके हम लोग देख सकते हैं कि हमें क्या विजिबल करना है। सो मैंने सिलेक्ट किया, विजिबल हो रहा है। बेसिक मतलब सिर्फ हमें क्लिक करना है।
विजुअल्स और एक विजुअल है जो इसमें भी डिस्प्ले हो रहा है, वो है गॉड चार्ट। ये वाला, सो एक लास्ट गॉड चार्ट डिस्प्ले करते, सपोज मैंने गॉड चार्ट पे क्लिक किया। ओके, सो सपोज मैंने लिया सब कैटेगरी प्राइस प्रॉफिट। तो अभी ये क्या इंडिकेट करता है हमें कि हमारा टारगेट जो है वो इतना है और हमने अचीव कितना किया है प्रॉफिट, 286.40 के। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा टारगेट इतना अचीव होना चाहिए और हमने अचीव इतना ही किया है। लाइक हम लोग देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द टारगेट इज अचीव्ड प्रॉफिट में, सब कैटेगरी वाइज। सपोज अभी सब कैटेगरी कट करके हम लोग कैटेगरी लेते हैं। सेम ही है, सेल्स। सो रीजन एंड सेल्स, रीजन वाइज सेल्स कितना होना चाहिए था 4.59, बट हुआ कितना है 2.30 मिलियन ही उसका सेल्स हुआ है। तो इससे हम लोग बहुत चार्ट यूज होता है तो शो द टारगेट वैल्यू एंड हाउ मेनी टारगेट वी हैव अचीव्ड। सो ये तीन पे रिपोर्ट टेबल टू टेबल मैंने बता दिया, डेटा कनेक्टिंग टू टेबल्स। अगर आपने कुछ गूगल से विजुअल्स इंपोर्ट किए ऑनलाइन तो आप इंपोर्ट अ विजुअल फ्रॉम अ फाइल, तो ये अगर आप क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर दो, ये फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, जैसे आपको इधर डायरेक्टली इंपोर्ट करना है। तो ये विजुअल आपको रिमूव करना है, डिफॉल्ट रिस्टोर डिफॉल्ट विजुअल्स को, ये वाला ऑप्शन है। सो इसमें अभी तक जो हमने विजुअल्स फिल्टर्स एंड डेटा इंपोर्टिंग वगैरह देखा, उसमें किसी को कुछ डाउट है? सो आई होप आप इंस्टॉल करोगे। मैं लिंक जो है इंस्टॉलिंग का पावर बीआई का वो मैं शेयर करती हूँ ग्रुप पे या फिर जो भी पर्सन है कोऑर्डिनेटर उनके साथ, और उनको आप प्रैक्टिस करोगे ये सब विजुअल्स एंड पावर बीआई का। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। Okay, so I'm ending this lecture. I think you don't have any doubts. Hello. Hello. Yes. Hello. Am I audible to all of you? आवाज येतोय का? Yes, yes, sir.
Yes, yes. वैष्णवी भिलार मॅडम झालंय का आपलं हो हो एक्सप्लेनेशन करून? हो हो झालं जे जे एकदम इम्पॉर्टंट पार्ट्स होते ना ते मी एक्सप्लेन केलेत. आय होप यू गाईज विल Okay, okay. Okay. From behalf of my college and institute, I'm very thankful about to ma'am because she spent with us a very precious her time and gives us valuable things or data about how to store this data analytics. Thank you, ma'am. Thank you so much. I also felt so good sharing my valuable time with you all. Okay, thank you. And I really hope that is very helpful for us in academic session also. Yes, sure. Thank you so much. I will send you the link of Power BI installing. Please share with all. Okay. Thank you so much. Thank you.